اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لڑکی جو ہے نا، اس کی والدہ جو ہے نا وہ منوباد میں رہتی تھی. یہ ٹھیک لڑکی ہے. اس کو ملی تھی ایسے ہی جیسے 4-5 سال کی عمر میں اس کو ملی تھی. جو تھی وہ گلی سڑی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی اس کا چہرہ جو تھا، آپ کو اس کی میں تصویر دکھاؤں ناقابل شناخت تھا وہ تو آپ ویسے ہی توبہ توبہ کریں گے. 12 دن پرانی ناش جس سے بدبو آ رہی تھی، کوئی پاس بھی جانے کو تیار نہیں تھا. لوگ جو ہیں وہ ادھر جانے سے بھی پرہیز کر رہے تھے کہ بڑی بدبو آ رہی ہے. اب اس کو ہم نے پکڑا، اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے تمام جو واقعہ نا، جو تمام وقوع وہ اگل دیا ٹھیک کہ ہے. میرے ساتھ فلاں فلاں بندے تھے، فلاں فلاں کے ساتھ میں نے مل کر. ڈیڈ باڈی سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ دور دور تک لوگ جو ہیں وہ ناک جو اپنے بند کر رہے تھے. تو عورتوں نے اتنی دلیری کے ساتھ اس کو غسل دیا. اس کے ملزم پہ علی رضا پہ میں نے کافی ریڈ کیے ہیں. ادھر یہ مین بازار مرید کے میں رہتا ہے. اس کی والدہ جو ہے وہ بیوٹی پارلر کا کام کرتی، والد اس کا فوت ہو چکا ہے. ناظرین، آپ نے کہانی دیکھی کس طرح سے وہاں پہ آپ کو جائے وقوع پہ جا کے ہم دکھاتے ہیں کہ کیسے ایک نوجوان لڑکی کی جو نعش ہے وہ برآمد ہوتی ہے اور پولیس اس کی مدعی بن جاتی ہے. جب اس کے لواحقین کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے تو کیسے پولیس کا جو ہاتھ ہے وہ ملزمان کے ان کی گردن تک پہنچ جاتا ہے اور کس طرح سے ان ملزمان کو، شاطر اور چلاک ملزمان کو کیسے دبوچتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کو سارا جائے وقوع دکھایا کس طرح وہاں پر اجاڑ تھا، ویران جگہ تھی، ایک طرف نالا ڈیک تھا، دوسری طرف جنگلات کی طرح کا وہ علاقہ تھا. کس طرح سے وہ لے کے آتے ہیں، کیا اس خاتون کو وہاں پر ہی قتل کرتے ہیں یا کسی جگہ پہ اس کا قتل کر کے وہاں پہ لا کے اس کو دفن کر دیتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ انویسٹیگیشن تھانہ فروز والا میاں شوکت صاحب موجود ہیں. انہوں نے ایسی انویسٹیگیشن کی کہ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صرف اور صرف ایک سم چپ، سم جیکٹ جو ہے اسی کی وجہ سے ایک ملزمان تک پولیس کیسے پہنچتی ہے. اور یہ پولیس کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے اور اپنی بڑی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے، بڑی محنت سے، بڑی لگن کے ساتھ اس کی تفتیش کرتے ہیں. ایک وہ خاتون جس کے گمشدگی کی کوئی رپورٹ بھی درج نہیں ہوتی، کوئی ایف آئی آر، کوئی اپلیکیشن درج نہیں ہوتی، مگر پولیس کے لیے بہت مشکل تھا کہ اس کے لواحقین تک پہنچنا. کیسے ملزمان تک پہنچتے ہیں؟ انویسٹیگیشن آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑا قیمتی وقت اپنا دیا. سر یہ بتائیے گا کہ اس گڑھے میں جو خاتون کی جو نعش برآمد ہوتی ہے وہ خاتون کون تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مورخہ 8/4/2026 کا واقعہ ہے کہ اظہر جوید ہمارے ایسے ہی چوکی انچارج کامران شہید جی. انہوں نے ادھر 15 کی کال مل کر اطلاع ملتے ہی فوری طور پہ وہ موقع پہ پہنچا. ایس ایچ او صاحب کو اطلاع دی. جب بھی کوئی اسپیشل رپورٹ کیس درج ہوتا ہے تو فوری طور پر افسران کو جو ہے نا اس بات سے آگاہ کیا جاتا ہے فوری طور پہ. ہمارے آر پی او صاحب، ہمارے ڈی پی او صاحب شیخوپورہ بلال ظفر شیخ صاحب، ان کو فوری طور پر ایسے کیسوں کی اطلاع دی جاتی ہے. تو انہوں نے فوری ایکشن لیا اس بات کا کہ جو خاتون ہے آخر اس کو کس نے قتل کیا ہے، یہ ایسا کیوں واقعہ ہوا اور ہے، یہ خاتون کون ہے؟ اور یہ خاتون کون ہے. مجھے تفتیش مارک ہوگی. میں بھی فوری طور پر لیڈی کانسٹیبل کے ہمراہ ادھر پہنچا موقع پہ. تو موقع پہ جا کر دیکھا تو ادھر مسک شدہ لاش تھی، تقریباً 10-12 دن پرانی نعش جس سے بدبو آ رہی تھی. کوئی پاس بھی جانے کو تیار نہیں تھا. لوگ جو ہیں وہ ادھر جانے سے بھی پرہیز کر رہے تھے کہ بڑی بدبو آ رہی ہے. لیکن ہماری تو ڈیوٹی ہے، ہم نے تو اسے ایسے سمجھا جیسے یہ ہماری بیٹی ہے. کوئی شک نہیں اس میں. تو اس کو میں نے باقاعدہ سرچ کیا لیڈی کانسٹیبل کے ذریعے. ادھر 1-2 مقامی عورتوں کو بلایا. مقامی عورتوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. ادھر ان کی سرچ کے دوران ایک ہمیں سم مل گئی لڑکی کے کپڑوں سے. کپڑوں سے مل ہاں گئی؟ جی، کپڑوں سے مل گئی. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملی؟ اس کے علاوہ کوئی چیز موبائل نہیں وغیرہ ملی. کو، پرس وغیرہ کچھ نہیں ملا، صرف سم ہاں ملی جی، ہے؟ موبائل جو اس کا خامند ہے وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا. ٹھیک اس ہے. کا آئی ڈی کارڈ ہاں. فرزانہ بی بی کا، اور ساتھ اس کا جو ہے موبائل فون وہ بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے. جو ملزم ہے؟ جو ملزم ہے. ٹھیک ہے. تھوڑے بہت اس کے پاس پیسے تھے وہ بھی ساتھ لے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کا باقاعدہ جو ہے کاغذات تیار کیے، ٹی ایچ کیو ہاسپٹل سے پوسٹ مارٹم کروایا. اس کے بعد ہمارے ایس ایچ او صاحب نے، اظہر جوید نے، اے ایس آئی جو ہے انہوں نے ادھر اعلانات کروائے راوی ریحان میں، منو آباد میں، ملک آبادیوں میں. تھانوں سے پتہ کیا لیکن کوئی پتہ نہ چلا. کسی جگہ پہ کوئی گمشدگی کی اس کی کوئی اپلیکیشن نہیں تھی؟ نہیں، شروع سٹارٹ میں ہمیں تھانہ صدر مرید کے سے بھی پتہ کیا. ہاں. اس کے بعد ہم نے اپنے تھانے سے بھی پڑتال کاٹ کی
उसके बाद कोट अब्दुल मालिक से भी पता किया, लेकिन कोई उसकी रिपोर्ट जो है ना, सिटी मरीदके से भी पता किया, कोई रिपोर्ट नहीं हमें मिली। ठीक है। हमने उसका बकायदा पोस्टमार्टम करवाया THQ अस्पताल फिरोजवाला से, हाँ। जो डॉक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसकी जो है ना गर्दन भी टूटी हुई है। अच्छा, हाँ जी, गला भी जो है ना इसका उसकी जो दबाया मौत गया। है वो गला दबाने, गर्दन तोड़ने। हाँ जी। हाँ। उसके बाद हमने पोस्टमार्टम करवाकर काले शाह काकू ले गए कब्रिस्तान में। ठीक है। उधर मुकामी औरतें जो है उन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया। ठीक है। जिस डेड उसकी बॉडी तदफीन से, में। हाँ जी, उसकी तदफीन में। ठीक है। जिस डेड बॉडी से इतनी बदबू आ रही है कि दूर दूर तक लोग जो है वो नाक जो अपने बंद कर रहे थे। तो औरतों ने इतनी दिलेरी के साथ उसको गुस्ल दिया। मुकामी लोग हमारे साथ शामिल हुए जनाजे में, उधर हमने उसको दफन किया मानतन। ठीक है। दफन करने के बाद हमारे RPO साहब, DPO साहब जो है उन्होंने IT ब्रांच के जरिए हमें टास्क दिया कि फौरी तौर पे ये जो सिम है ना इसका जो है ना डाटा निकलवाया जाए। ठीक है। वो हमने डाटा निकलवाया, तो जिसके साथ उसका ज्यादा राब्ता हुआ उस सिम पे, ठीक है। हमने उसकी तलाश शुरू कर दी। ठीक है। आखिरकार मतलब आपकी कोशिश थी कि हम इसके जो लवाहिकीन हैं जी उनको जी। तलाश किया हाँ, जाए। पहले तो हम लवाकीन को तलाश करते रहे। ठीक है। लवाकीन का हमें पता नहीं चला। ठीक है। मुलजमान ने भी लवाकीन को जाकर 10-12 दिन गुजरने के बाद भी नहीं बताया। बताया नहीं है। बताया नहीं है ठीक कि है। हमने उसको कत्ल कर दिया या हमने उसको ठिकाने लगा वो दिया। कैसे बताते? हाँ जी, वो कैसे बताते। हाँ। हमने इसके खामद जो है ना नवीद को पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ लिया। हाँ जी, पकड़ लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको पकड़ लिया। जब उसको हमने पकड़ा, उससे पूछताछ की, तो उसने तमाम जो वाकया ना, जो तमाम वकूआ वो उगल दिया ठीक कि है। मेरे साथ फलां फलां बंदे थे, फलां फलां के साथ मैंने मिलकर। असल कहानी ये है, ये वजह क्या थी, उन्होंने कत्ल किया क्यों? इसमें असल वजह यह है कि ये लड़की जो है ना, इसकी वालदा जो है ना वो मनोबाद में रहती थी। ये ठीक लड़की है। उसको मिली थी ऐसे ही, जैसे 4-5 साल की उम्र में उसको मिली थी, ठीक है। लापता मिली थी। लापता मिली थी। लापता मिली जो सुगरा बीबी है। सुगरा बीबी है। ठीक तो है। सुगरा बीबी ने इसको बेटियों की तरह पाला, ठीक है। बेटियों की तरह जवान किया। ले पालक बेटी थी हाँ, उसकी। ले पालक बेटी थी। ठीक है। बेटियों की तरह उसने इसको जवान किया, जवान करके इसको मरीदके में शादी, इसकी कामों की में शादी कामों की की शादी कर दी। हाँ जी, कामों की शादी के दौरान ये जो नवीद मुलजम है ना, हाँ। कहीं इसके साथ उसकी मुलाकात हो जाती। अच्छा, ये- नवीद मुल्ज़म के हाँ साथ। जी, हाँ। नवीद जो उसकी वालदा भी मनोबाद में रहती थी, ये नवीद मुलजम भी मनोबाद में काम करता था, ठीक है। स्टिचिंग का। हाँ। तो उस लड़की के साथ इसकी वाकफियत होगी। ठीक है। इसने उधर कामों की से तलाक दिलवाई इस लड़की को, ठीक है। तो फिर अपने साथ शादी की, आपने साथ शादी कर ली अपने साथ शादी कर ली। नवीद ने। हाँ जी। ठीक है। वो लड़की इतनी इसकी वफादार बन गई कि उसने पहले खामर से तलाक लेके इसके साथ शादी कर ली। ठीक है। 2 बच्चे हैं इसमें, एक का नाम मोहम्मद अहमद है, दूसरे का नाम वो भी छोटा है। अच्छा, 2 बेटे हैं इसके। 2 बेटे हैं हाँ। इसके। तो इसने शादी 7-8 साल शादी इनकी कायम रही है। ठीक है। तो फिर ये जैसे बंदों को बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, एक को छोड़ा दूसरी के पीछे लग गए, हाँ। तो इसने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसको फरजाना को। फरजाना को नवीद ने। नवीद ने ठीक इग्नोर है। करना शुरू कर दिया। हाँ। फरजाना क्योंकि इसके साथ वफादारी करती थी, वो कहती थी कि मैंने रहना तो आपके साथ ही साथ रहना, रहना है। नहीं तो मैंने और कहीं किसी के साथ नहीं जी। रहना। ठीक है। उसने अपने बच्चों का दावा कर दिया इधर सिविल कोर्ट फिरोज वाला में। ठीक है। वो दावा भी इसके हक में डिग्री हो गया। ठीक है। नवीद को पता चल गया कि अब मुझे ना ये मेरी जान भी नहीं छोड़ रही, तो इसका जो है खर्चा भी मुझे देना वो पड़ना। खर्चा देता रहा उसे? नहीं, कुछ नहीं दिया आज अभी तक। कुछ नहीं दिया। हाँ जी, ठीक अभी है। डिग्री हुआ था उसके हाँ, खिलाफ। अभी उसके तो खिलाफ उसने हुआ कहा था। चलो इसको ठिकाने लगाते हैं। ठीक है। इसने अपनी वालदा जमीला बीबी के साथ मिलकर, जमीला बीबी ने इसको मशवरा दिया, जमीला बीबी नवीद की वालदा। नवीद की वालदा, ठीक है। कि इसको जो है ना वैसे ही खत्म कर दो। तंग करती, ब्लैकमेल करेगी। ब्लैकमेल करेगी। ठीक है। तो अली रजा एक लड़का मरीदके का रहने वाला है। ठीक है। वो ये जो नवीद है और अली रजा ये इकट्ठे स्टिचिंग का काम करते हैं। उसका शागिर्द है अली रजा, अली रजा शागिर्द है। ठीक है। नवीद का। हाँ। वो ये मनोबाद में इकट्ठे काम करते थे। इन्होंने आपस में प्रोग्राम बनाया हाँ। कि ये जो फरजाना बीबी है ना इसको कत्ल करना है। ठीक है। अली रजा का दोस्त था रईस, हाँ। उसने पिस्टल मुहैया किया, पिस्टल पहले ही उसके पास मौजूद था। ठीक है। तो तलाक भी दे दी थी। हाँ। नवीद ने फरजाना बीबी को तलाक भी दे दी, इसके बावजूद भी वो इसके कहने पे जहां ये कहता था आ जाती थी, इतना प्यार करती थी उससे। इतना प्यार करती थी ऐसे। ठीक है। तो इसने उसको फोन किया हाँ। कि आओ अब मैंने ना आपके साथ कोई बात करनी है खर्चे के बारे में, या हम बच्चों के बारे में कोई बात करते हैं। ठीक तो है। वो शाम के वक्त जो आ गई इसके कहने पे, इसने उसको मोटरसाइकिल पे बिठाया
हाँ तो उधर से डेक नाला की तरफ से लेकर रईस और अली राजा जो वो पहले ही उधर मौजूद थे। पहले मौजूद थे, पहले मौजूद तीनों थे। इकट्ठे नहीं हाँ, आए। तीनों इकट्ठे नहीं आए। अच्छा, ये उसने फरजाना को बोला क्या था कि क्या लेने जाना है डेक के ऊपर? बस उधर ले गया उसको, वो चक्कर दे के, चक्कर दे के ले गया। चक्कर दे के ले गया। हाँ हाँ जी, वो उधर ले गया डेक पे जाकर उधर इसने ना उसको पहले उसने ऊपर बरखा डाला हुआ था, हाँ। बड़े साफ सुथरे कपड़े थे, ठीक है। बड़ी साफ सुथरी जूती थी, स्टाइलिश किस्म की जूती थी उसने पहले, फरजाना जैसे ने। कोई बड़ी साफ सुथरी लड़की हम्म। होती है। ठीक है। तो उधर ले गया, उधर जाकर इसने पहले इसके बुरखे से इसका गला दबाया। ओह, गला दबाने के बाद जो रईस है इसने इसके ऊपर पिस्टल 30 बोर के 3 फायर मारे इसको। 3 फायर मारे। हाँ जी, 3 फायर मारे। ठीक है, तो 3 फायर मारने के बाद जो आपने उधर माशाल्लाह आप गए हैं देखा होगा देखा है। कि वो जो बन है वो थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर है, बिल्कुल ऊंचा ऊपर है, काफी। उसके पास फिर निचले वाली जगह, उसके बाद फिर निचले वाली जगह आगे जाकर रेतला आगे रहा। जाकर रेतला, बिल्कुल। इन्होंने उधर से उसको फेंका, ऊपर से रेड नीचे दिया, फेंका, ऊपर हाँ। से ही रेड दिया। हाँ, तो उधर वो जाकर इसको ने गड़ा खोद कर है। कस्सियों से, तो इनके पास ये औजार थे आजाद गड़ा थे, खोदने वाले? कस्सियां भी थी इसके। अच्छा, इनके पहले पास। इन्होंने सारी पहले प्लानिंग की उधर हुई सब थी। कुछ- गड़ा पहले ही खोदा हुआ था उधर। ठीक है, उधर जाकर इसने गड़े में जो है ना उसको रेतले इलाके में जाकर दबा दिया। दबा दिया वहां हाँ पे। जी, 10 दिन के बाद उधर कोई चरवाहा आता है, हाँ। उधर तो कोई जाता भी नहीं है, जाता भी नहीं है, गर्मी के दिन के है, टाइम जा ही नहीं सकता कोई, वैसे बड़ा भी खौफनाक सर्दी सा भी हो। इलाका है। हाँ, खौफनाक सा इलाका है, कोई उधर नहीं जाता। हाँ। उधर जाता है तो कोई जिम्मेदार जाएगा या कोई मवेशी वगैरह चारने वाला जाएगा। ठीक है। तो वो लड़के जो है मवेशी चारने वाले उधर गए, चरवाहे ने जाकर कहीं देखा कि ये जो इंसानी पैर है, ये उंगलियां नजर आ रही हैं। ठीक है, कुछ जानवरों ने मिट्टी खोदी होगी ना। बस वैसे ही जब कोई अल्लाह ने भेद खोलना भेद खोलना हो, या मुलजमान को कत्ल छुपता बेनकाब नहीं है। करना हो, हाँ। कत्ल छुपता नहीं है। सही है। तो उन्होंने 15 पे कॉल की, अजहर जवेद जो है वो मौके पे गए, एएसआई हमारे, मैं भी फिर फौरी तौर पे पहुंचा मौके पे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इनके ऊपर आपको शक कैसे हुआ कि आप तो लवाहिकीन ढूंढ रहे थे, लेकिन नवीद के ऊपर शक कैसे हुआ कि ये सारा मामला नवीद ही कर सकता है? जो हमें सिम मिली थी, अपनी तफ्तीश में शामिल कैसे जो किया? हमें सिम कार्ड मिला था उस पे नवीद के साथ ही ज्यादा राब्ता, ज्यादा राब्ता था, ज्यादा राब्ता नवीद के साथ ही रहा। ये राब्ता सारा तो किसी के साथ भी हो सकता है, मगर कि कत्ल नवीद ने किया होगा, ये शक कैसे हुआ आपको? अच्छा, वो अब नवीद को जब मैंने इंटरोगेट किया, हाँ। उसको पकड़ा, उससे पूछी तो उसने सारी बात बता दी। सारी बात फौरी हाँ बता जी, दी उसने? तो फौरी बात बता दी कि मेरे साथ फलां फलां मुलजम है। हाँ। फिर मैंने नवीद के बाद रईस को भी गिरफ्तार कर लिया नवीद की निशानदेही पे। हाँ, रईस को जब पकड़ा तो उसने भी वो ही उसकी बात की तस्दीक की। तस्दीक करके सेम है हाँ वैसे जी, ही। हाँ, नवीद के बात की तस्दीक करके ठीक है। हमने इनको फिर बकायदा इनका रिमांड लिया। हाँ, देखे एक खामन जो है कि एक लड़की से उसका मोबाइल फोन और उसका आईडी कार्ड भी चोरी करके ले गया कि ताकि इसका किसी को पता ना पकता ना चले, मैं पकड़ा ना हाँ जी, जाऊं। मैं अपनी पकड़ा तरफ से ना बड़े वो शातिर और चलाक हाँ, बने हुए शातिर और चलाक बने हुए थे। थे। ये जो अली रजा लड़का है, इसका क्या किरदार है? अली रजा लड़का जो है ये साथ था, इसने कोई फायर नहीं मारा। हाँ। इसने साथ होके दफनाया उसको, सहूलतकारी उधर- की है उधर साथ में। सहूलतकारी की है। उधर इसने गड़ा अभी ये खोदा। गिरफ्तार हैं तीनों? ये जो रईस जो है वो भी गिरफ्तार है। हाँ, उसके बाद इसका खामन जो है नवीद है, ठीक है। वो भी गिरफ्तार है, डिस्ट्रिक्ट जेल शिवपुरा में बंद है। ठीक है। जो नवीद मुलजम है उसकी निशानदेही पे जिस मोटरसाइकिल पे वो लेकर गया था वो मोटरसाइकिल भी बरामद है। ठीक है। मुसम्मद फरजाना का जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वो भी बरामद है। अच्छा, उसके अलावा जो इसके पास और कोई चीजें थी, मोबाइल वगैरह? मोबाइल, हाँ सॉरी, मोबाइल जो है फरजाना बीबी का बिल्कुल नया मोबाइल था। हाँ, जिस तरह के एक बाशऊर लड़कियां, बड़ा अच्छा मोबाइल था उसका, जी, वीवो का मोबाइल था, अच्छा, वो भी बरामद हो चुका है नवीद मुलजम की निशानदेही पर। ठीक है। इसके बाद जो रईस मुलजम है, रईस मुलजम के पास पिस्टल जैसे उसने वो भी फायर बरामद हो मारे, चुका है, हाँ। वो भी बरामद हो चुका है। इसमें सर सबसे जो अहम बात मेरे लिए ये थी हाँ, कि हम केस की तफ्तीश तो कर लेते हैं, हाँ, लेकिन कल को हम अदालत में जब साबित करने के लिए उसके सबूत पैदा करने होते हैं। कायदा करने होते हैं। हाँ जी, उसमें हुआ ये कि हमने इसका बकायदा जो, क्योंकि लाश जो थी वो गली सड़ी थी, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई उसका चेहरा जो था, आपको उसकी मैं तस्वीर दिखाऊं नाकाबिले शनाख्त था वो तो आप वैसे ही तोबा तोबा करेंगे खौफ कि से, ये हाँ, बिल्कुल खौफ से ऐसे, इंसान को खौफ आता है इंसान को जी, देखने से, बिल्कुल कि ऐसे ही है। बिल्कुल जो है ना खराब हो चुकी थी, डेड बॉडी सारी खराब हो चुकी थी। हाँ, तो फिर हमने उसका जो है उसके कपड़े जो फरजाना बीबी के थे कि इसको वाकया ही कल को अदालत में हम कैसे साबित करेंगे कि इसको फायर मारे, इसको फायर मारे गए, कोई उधर से हमें खोल भी नहीं मिले थे क्योंकि 10 दिन पुराना 12 दिन पुराना वकूआ हो चुका बिल्कुल था। सही है। तो उसमें जो है हमने उसके जो कपड़े हैं वो जीएसआर के लिए कि आया कि इसको वाकया ही फायर मारे गए, जीएसआर के लिए हमने उधर पीएफएसए में जमा करा दिए। सही है। इसके अलावा जो
फरजाना बीबी को फरजाना साबित करने के लिए हाँ कल को कोई मुलजम ये अदालत में प्ली ना ले लें कि ये तो फरजाना बीबी आई नहीं है जो पुलिस ने हम पे डाल दी है। डाल दी है, पता नहीं ये कौन लड़की है बिल्कुल जो सही है। उसका बेटा उसकी मतलब उम्र मुकम्मल महकमाना कार्रवाई बड़े एक अपने अच्छे तरीके से बड़े इंटरोगेट किया। टेक्निकल तरीके से टेक्निकल तरीके अफसरान से। की हिदायत के मुताबिक उसके जो बेटा है हाँ उसका हमने उस फरजाना बीबी के साथ डीएनए कराया। अच्छा उसमें हमें अदालत में साबित करने के लिए मदद ये मिलेगी कि जब रिपोर्ट आ जाएगी कि ये फरजाना बीबी का ही बेटा है हाँ तो फिर उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा फरजाना बीबी सर की दो डेड मुल्जमान तो अभी आप कह रहे हैं कि पुलिस की हिरासत में है। बॉडी। जी जी। जो तीसरा मुल्जम है अली रजा, तीसरे मुलजम पे अली रजा पे मैंने काफी रेड किए हैं। उधर ये मेन बाजार मरीदके में रहता है। हाँ इसकी वालदा जो है वो ब्यूटी पार्लर का काम करती, वालिद इसका फौत हो चुका है, ठीक है। कोई इसका भाई भी नहीं है। हाँ तो उस पे रेड किए हैं, वो अभी भागा हुआ है। तो बाकी जो जमीला बीबी है वो अभी पूरी जमानत पे है, 15/6/2026 तक। उसकी भी हमने जमानत खारिज के लिए लिखा सर हुआ है। इसका एक तो कामों के में शादी हुई थी, दूसरी शादी इसकी हो जाती है नवीद के साथ। जी सर। नवीद ये मामला उसने आगे शादी की हुई थी किसी के साथ, नवीद ने फरजाना ने? नहीं, फरजाना ने और किसी के साथ नहीं शादी अभी वो किसी की भी जोजियत में नहीं थी? नहीं, किसी के नहीं थे। वो तो इससे प्यार करती थी, इसी से नवीद प्यार करती थी। इस खर्चे का दावा भी उसने इसलिए किया था कि ये मेरे साथ सुलह कर ले। सुलह कर ले। लेकिन इसने बस पता नहीं क्या इसके दिल में आया कि कत्ल तो फिर आप समझते हैं कि कत्ल तो छुपा नहीं रहता। नहीं छुपा रहता, और आप जैसे काबिल अफसर हो। इंशाल्लाह हमने इसका डीएनए भी करवाया, बच्चे का भी करवाया, हाँ मुलजमान का भी डीएनए करवाया। जो हमने 2 मुलजम गिरफ्तार किए, मेन मुलजम है 2, अच्छा। नवीद और रईस, हाँ। जो कि डिस्ट्रिक्ट जेल कुछ शिवपुरा में ज्यादती बंद। वगैरह भी की? हाँ, वो भी हमने डीएनए करवाया हाँ कि इन्होंने उनके, ये मुलजम नहीं मानते कि हमने ज्यादती नहीं की है, हाँ लेकिन फिर भी हमने इनका डीएनए करवाया कि आया कि इन्होंने ज्यादती तो नहीं की है, ज्यादती के बाद तो नहीं इन्होंने कत्ल सही किया। है। हम इंशाल्लाह इस केस को जो है ना, हम जो मुलजमान हैं इनको इंशाल्लाह जरूर सजाए मौत अच्छा दिलाएंगे। सर, इससे पहले जो पुलिस की मदयत में एफआईआर दर्ज हो जाती है थाना फिरोजवाला में, फिर उसके बाद एक माँ जो है मंजर आम पे आती है, सुगरा बीबी। उसने पहले तो एप्लीकेशन दी नहीं, कोई इश्तहार शोर गोगा भी नहीं करवाया किसी थाने में भी। उसके बाद वो बयान तमीमा में वो मुद्दई बनने की कोशिश कर रही है, बल्कि बन गई है, जी जी। सुगरा बीबी है। क्या अब वो तमाम नफसानी के लिए तो ये सारा मामला नहीं कर रही? इससे पहले वो कहाँ थी? अब अचानक से नहीं, कैसे? ऐसी कोई बात नहीं। हाँ। ऐसी नहीं कोई बात। ये तो लोग उसको फोर्स कर रहे हैं हाँ। कि हमारे साथ सुलह कर लो, ठीक है कि हम आपके पास सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन वो इनके साथ सर, कहती नहीं, इतनी मैंने आपकी सुलह नहीं मेहनत है, इतनी हाँ जी। आपने महकमाना कार्रवाई करते हुए इतनी आपने कोशिश की, उसके बाद अगर यही जो आप मदई बन गई है, अगर उनके साथ सुलह कर लेती है तो फिर कानून की मेहनत सारी कहाँ पे चली जाएगी सर? जी जी, वो तो फिर जाया ही जाएगी। हाँ उसमें ये बात है कि जब स्टेट जो है ना, स्टेट ने मुद्दई तो बनना ही होता है। बनना ही होता हमें है। अगर कोई भी डेड बॉडी मिलती है, कोई भी हमें कोई लावारिस नाश मिलती है, या हाँ। कोई भी हम जाते हुए वकूआ हो जाता है देखते हैं, तो कोई भी मुद्दई नहीं बनता, तो हम तो इंशाल्लाह मुद्दई बनते हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, ये थी वो मुकम्मल कहानी फरजाना बीबी के किस तरह से एक नामलूम लड़की जो एक शादी अपनी कामोगी में करती है और दूसरी शादी नवीद से करती है, और नवीद भी किसी और लड़की के चक्कर में इसको तलाक दे देता है और वो खर्चे का दावा करती है। खर्चे का जब दावा करती है, वो कहते हैं जी मुझे खर्चा ना देना पड़े, इसी वजह से वो अपने शागिर्द को साथ, जिसका नाम अली रज़ा है, और अली रज़ा अपने दोस्त रईस को साथ में मिलाता है और कत्ल की प्लानिंग करते हैं। ये तो प्लानिंग करते हैं यहाँ पर, और एक प्लानर ऊपर भी बैठा हुआ था जो इनकी सब बातें सुन रहा था। और ऐसे जो काबल पुलिस अफसर हैं जिन्होंने अपने अफसरान बाला की हिदायत के ऊपर इसकी मुकम्मल इंटेरोगेट करते हैं और महकमाना कार्रवाई करते हुए पूरी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस केस को इंटेरोगेट करते हुए पता चलाते हैं एक ऐसी लड़की की जिसका ना कोई उसके आगे था, ना उसके कोई पीछे था, ना उसके कोई पेरेंट्स वालदैन थे। ये ले पाले की बच्ची थी जो किसी खतून ने पाली हुई थी, अभी वो मदैया बन रही है। उसको पुलिस ने इंटेरोगेट करते हुए सिर्फ एक सिम की मदद से उसके जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, और हम उम्मीद करेंगे कि वो अपने अंजाम तक ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई छोटा जुर्म नहीं किया, उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है। एक लड़की का कत्ल करके उसको छुपाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसको सारा जो केस था उसको ट्रेस कर लिया। ये एक अंधा केस था, बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, जिसको पकड़ा जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसके हाथों की जो फिंगर्स थी, वो बॉडी तो टोटली उसके डिकम्पोज हो चुकी थी, मगर फिर भी बड़ी महकमाना कार्रवाई की है। और हम शेखपुरा पुलिस को यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं, और हम ऐसे अफसरान को भी अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से दिन रात एक करके ऐसी जो स्टोरी है उसको, जो ब्लाइंड मर्डर है, उसको आप लोगों के सामने लेके आए हैं।